So what we are planning is all of you have come and we will not be able to cover everything in one session. So what we planned is we planned 3 sessions, right? And we'll see how they go. So the first one is about understanding accounting ratios. What do they mean? What do they signify? And how can they help us monitor our own financial health, the progress of our business? I mean, can we through them figure out where is it that we are doing good and where is it that we are doing bad? So today's session is about all that. But before we understand accounting ratios, we have to understand few things. We have to understand balance sheet. We have to understand profit and loss account. So I will take a live balance sheet of a company and we'll discuss that, various heads, etc. Now, if your balance sheet, profit and loss account looks different, right? You can always talk about it and we'll discuss that as well. So this is today's session. The next session would be about valuation of business and company, right? So all of us are worried. All of us want to see whether we are growing, how fast, and how would the market value us, whether we want to sell it or not, but at least we should know how much are we worth. So the second session will be about all that. And again, to come to the valuation, we need to understand few concepts. We need to understand time value of money, interest, etc. So we'll discuss all that. We will discuss how to evaluate our investments, our borrowings, right? All of us do that in our business. And then we'll come to valuation. The third session would be about cost and management accounting, right? So that is where we'll discuss things like budget management, cost controls, what are the various types of costs, right? And how do we control them? So that would be session 3. More about today's session. So like I said, we will first discuss about balance sheet, profit and loss account. There are a few concepts that we are going to talk about, right, which are essential. And then we are going to talk about management ratios. Management ratios are basically indices. Now all of you know what balance sheet is, right? What is balance sheet? क्या किसको मतलब balance sheet हम जब देखते हैं हर साल तो क्या होता है balance sheet में? तो balance sheet जो है वो हमेशा as off होती है. मानव ने एकदम सही कहा कि वो एक तरह से हमें अपना फाइनेंशियल हेल्थ बताती है, हमें ये बताती है कि हम क्या हम ओन करते हैं, हमारा राइट, क्या हमारी देनदारी है. ये चीज हमें बैलेंस शीट से पता लगती है. लेकिन हमारी देनदारी जो है वो कभी एक पीरियड की नहीं हो सकती. आज तक की जिस भी दिन हम अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, हम 31 मार्च को बनाते हैं तो वो एज ऑफ 31 मार्च हो जाती है, राइट. अगर आप जो है क्वार्टरली करेंगे, अगर आप 30 जून को अपनी बैलेंस शीट बनाएंगे, 30 जून 2026 को, तो इट विल बी माई बैलेंस शीट एज ऑफ 30 जून 2026. और उस तारीख को व्हाट इज इट दैट आई ओन, व्हाट इज इट दैट माई कंपनी ओन्स एंड व्हाट इज इट दैट माई कंपनी हैज टू पे, राइट. सो देयर आर एसेट्स, देयर आर लायबिलिटीज. टिपिकली जो है अभी हम देखेंगे हमारे एसेट्स कई तरह के होते हैं, लेकिन जब हम बैलेंस शीट में जाते हैं तो हम उनको सिर्फ टाइम पीरियड के हिसाब से कैटेगराइज करते हैं. अगर मेरी देनदारी है तो मेरी देनदारी इस साल की क्या है, मेरी देनदारी जो है मुझे अगले 12 महीने में क्या देनदारी देनी है, और क्या ऐसी मेरी देनदारी है जो मुझे 12 महीने के बाद भी मैं दे सकता हूँ या देना ही है. ठीक है. तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म. जब हम जैसे बैलेंस शीट देखेंगे, एंड व्हाट इज ट्रू फॉर एसेट्स इज आल्सो ट्रू फॉर लायबिलिटीज, उसमें भी जो है हमें जो एसेट्स मिलेंगे वो कई तरह के मिलेंगे. देयर आर फिक्स्ड एसेट्स, देन वी हैव करंट एसेट्स. व्हाट आर करंट एसेट्स? कैश, शॉर्ट टर्म, ठीक है, इन्वेंट्री, डेटर्स, यस. लेकिन कंसेप्चुअली अगर मैं देखना चाहूँ तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में क्या फर्क है? बट वी कैरी इन्वेंट्री फॉरवर्ड फ्रॉम वन ईयर टू अनदर, है ना. हम अपना ले जाते हैं ना, रॉ मटेरियल भी ले जाते हैं, फिनिश गुड भी एक साल से दूसरे साल ले जाते हैं, डेटर्स भी ले जाते हैं. फिर हम उनको करंट एसेट्स क्यों कहते हैं? मशीन भी हमारी हम बेच सकते हैं, हम मशीन खरीदते भी हैं. सो करंट एसेट्स आर बेसिकली जो हमें धंधा जो हम चला रहे हैं. एक है कि हमें धंधा जमाने के लिए कुछ चाहिए, हमें प्लांट, मशीनरी, सब कुछ जो है वो धंधा जमाने के लिए चाहिए, ठीक है. और एक होता है जो हम धंधा चलाने के लिए जो शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शंस करते हैं, काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स में चला गया. लेकिन अब हमें जब धंधा चलाना है, ठीक है, मुझे दुकान भी चलानी है, मैंने दुकान खरीद ली, राइट. दुकान में पंखा वंखा जो कुछ भी एसी वगैरह चाहिए था चला लिया. लेकिन अब मुझे दुकान चलाने के लिए सामान खरीदना पड़ेगा, सामान बेचना पड़ेगा. तो वो जो मेरा बिजनेस को चलाने के लिए जो मेरी शॉर्ट टर्म जो ट्रांजेक्शंस है वो है मेरा करंट एसेट्स. इसीलिए इसमें कैश आता है, इसीलिए इसमें देनदारी आती है, लेनदारी आती है. करंट लाइबिलिटीज होती तो देनदारी होती, इन्वेंट्री आती है कि मैंने क्या रखा है ना. क्योंकि ये रखा क्यों है? क्योंकि मुझे बेचना है. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी हूं तो मैं उसको
बनाऊंगा उससे जो भी मुझे बनाना है और फिर उसको बेच दूंगा, ठीक है। तो ये धंधा जमाने के लिए ये वैसे हो गया। फिर तो इसको अलग अलग तरीके से लोग मतलब कर लेते हैं। अगर आप देखो तो ऑपरेटिंग में टिपिकली वही आ जाएगा जो करंट एसेट्स होगा। नॉन ऑपरेटिंग में जो है धंधा जमाने के लिए प्लस जो है मेरा इन्वेस्टमेंट्स वगैरह। एक मैं कर रहा हूँ अपना बिजनेस, जैसे आपने कहा कि भाई हमारा फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का, दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूशन का बिजनेस है, लेकिन जब हम दवाइयाँ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कई बार हमारे पास पैसा आ जाता है, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि वो पैसा हमें 6 महीने या साल भर के बाद चाहिए हो। हम उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं, वो हमारी इनकम भी आती है। वो इनकम हमारी नॉन ऑपरेशनल इनकम है, क्योंकि जो मेरा धंधे का जो मेन पर्पज है वो तो दवाई खरीदना बेचना है ना। ऐसी आपके धंधे का जो मेन है वो तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर सर्विसेज बेचना है। तो अगर आपके पास कैश आता है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, आप उसको कहीं डिप्लॉय कर देते हो। डिप्लॉय करना है, कैसे करना है, वो हम नेक्स्ट उसमें बात करेंगे कि हाउ डू यू, व्हाट डू यू इन्वेस्ट इन। हाँ, सो पीपल, हाँ, बट आई जस्ट वांटेड टू ब्रिंग इट टू नोटिस, क्योंकि कई बार लोगों को रहता है यार ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, बट ये तो फिक्स्ड एसेट्स भी होते हैं, ऐसे भी होते हैं, राइट। तो इसलिए जो है सिमिलरली दे आर टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। सो टेंजिबल वो हैं जो फिजिकल हमें दिखते हैं, समझ में आते हैं। इंटेंजिबल वो है जिनका आपको वैल्यू जो है या आप उनका सीधा वैल्यू मार्केट में लगा नहीं सकते। जैसे अब अगर सौरभ ने अपने वीडियो सॉफ्टवेयर के लिए कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसने उसका लाइसेंस, उसका जो है आईपीआर पेटेंट ले लिया, तो वो भी तो एक एसेट है। हो सकता है उसकी कीमत हो सकता है उसकी कीमत ना हो, बट वो एक इंटेंजिबल एसेट है, राइट। आपने किसी चीज का लाइसेंस लिया। आप कई बार क्या होता है कि हम बिजनेस खरीदते बेचते हैं, तो जब हमने अपना जो है बिजनेस कोई खरीदा, हो सकता है उसकी कीमत 100 रुपए हो, राइट, लेकिन वो बेचने के लिए तैयार ही नहीं है स्ट्रेटेजिक या कुछ में, तो उसने जो हमें 110 का बेचा। तो वो जो 10 रुपए है वो हमने उसकी गुडविल दी, या हो सकता है उसकी ब्रांड वैल्यू दी। तो ये सब जो है इंटेंजिबल है, जो हमें दिखता नहीं है। प्रोडक्ट आपका टेंजिबल है, इट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, टेंजिबल है, लेकिन जो उसका जो आपने आईपीआर वगैरह लिया दैट बिकम्स इंटेंजिबल। ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज है। सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज जो है दे आर इंटेंजिबल। नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स, पहले हम लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म करते थे, अब जो है उन्होंने क्लासिफिकेशन चेंज कर दिया है, नॉन करंट और करंट कर दिया है। करंट इज जो हमें अगले 12 महीने में करना है, नॉन करंट इज जो हमारा 12 महीने के आगे भी है, उसके आगे हाँ, ठीक है। क्योंकि जैसे मैंने लोन लिया, मैंने 5 साल पहले लोन लिया था, ठीक है, मैं उसको चुकाता आ रहा हूं, तो पिछले साल तो वो नॉन करंट में आएगा, क्योंकि अगर वो इस साल खत्म हो रहा है और इस साल 6 महीने के बाद अगर खत्म हो रहा है, तो जो मेरी 6 महीने की लायबिलिटी बची है वो अब करंट एसेट्स में आएगी, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहे हैं, मतलब अभी आप कितने लोग आप जानते हैं, कितने लोगों ने आपने सुना है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हमारे लिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनाता है। देन देयर इज एन इंटरनेशनल बॉडी ऑल्सो, जो जहाँ पे सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है या सीपीएस वगैरह जो भी उनकी अकाउंटिंग की डेफिनेशन है वो आके बनाते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उनका एफर्ट ये चल रहा है कि जो हमारा अकाउंटिंग है, राइट, जो हमारी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, वो लोगों को एकदम सही पिक्चर दे बिजनेस के बारे में। जो भी उसको पढ़ रहा है उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो पहले कई प्रैक्टिसेस होती थी, अभी जैसे हम करेंगे आगे हम बात करेंगे, ठीक है, कई प्रैक्टिसेस होती थी जिससे आप कंपनियों को कंपेयर नहीं कर सकते थे, आपको कंपनियों का पता नहीं लगता था, क्योंकि एक आदमी जो है, किसी ने जैसे लीज पे इक्विपमेंट ले लिया, अब क्या होता था कि जो आप लीज रेंटल्स पे कर रहे हो, या किसी ने गाड़ी ईएमआई पे खरीद ली, एक आदमी ने बिजनेस में गाड़ी जो है कैश डाउन खरीद ली, ठीक है, वो तो सिर्फ डेप्रिसिएशन आ रहा है, दूसरे वाले ने लीज पे ले ली या ईएमआई पे ले ली, उसकी ईएमआई जा रही है, जो ईएमआई है पूरा वो खर्चे में जा रहा है। अब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो, हम नहीं कर पाएंगे। तो अब जो है जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट्स वगैरह है, उन्होंने ये बंद कर दिया। उन्होंने कहा है कि दोनों को अकाउंटिंग में एक तरह से दिखाना पड़ेगा, दोनों की लायबिलिटीज एक तरीके से दिखानी पड़ेगी। स्टैंडर्ड फॉर्मेट भी हो गया और इसका और भी इम्प्लीकेशंस आएगा। जैसे पहले जो ईएमआई पे लेता था उसको एक टैक्स बेनिफिट मिलता था, अब जो है दूसरे आदमी को उसको भी वो टैक्स बेनिफिट मिलना बंद हो जाएगा। एक कंपनी का, दो कंपनी है, प्रॉफिट जो है वो 100 रुपये है। एक कंपनी ने जो है गाड़ी ली, उसका डेप्रिसिएशन आ गया, सपोज हम लेते हैं 100 रुपये की गाड़ी ली, 10 रुपये का डेप्रिसिएशन आ गया। दूसरे ने जो है ईएमआई दी, उसने जो है 25 रुपये की ईएमआई दे दी। अब हमारा जो है, ये ग्रॉस प्रॉफिट लिख देता हूँ, अब मैं ये लिखता हूँ कि हमारा जो है नेट प्रॉफिट कितना रहा। लेकिन पहले जो होता था, जब आप लीज पे लेते थे
तो पहले लीज पे क्या होता था कि पूरा का पूरा जाता था, लेकिन ये जो आप कर रहे हो ना, ये पिछले 5 साल का डेवलपमेंट है। तो पहले क्या होता था, अब आपका जो नेट प्रॉफिट होगा इधर 75 हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा, राइट। एंड अगर आप टैक्स जो है 25% टैक्स दे रहे हैं तो इधर 75 हो जाएगा, इधर 90 हो जाएगा, दोनों की टैक्स लाइबिलिटी चेंज हो जाएगी। इधर जो है अगर मैं फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस 20% कर देता हूँ तो इधर 15 जाएगा, इधर जो है 18 जाएगा, एंड दोनों का जो नेट प्रॉफिट है वो चेंज हो जाएगा। आपको जो है ना एक टैक्स बेनिफिट मिलता था। सो नाउ व्हाट दे हैव डन इज दे हैव एक्चुअली रिमूव दिस एनोमली एवरीवेयर। तो लीज एसेट्स जो है ना, जैसे अभी हम आएंगे यहाँ राइट ऑफ यूज एसेट्स कर दिया उन्होंने, तो यू हैव टू अगेन शो देम एज योर एसेट्स। जो लीज लाइबिलिटी है वो अगेन लीज लाइबिलिटी की तरह आपको दिखानी पड़ेगी, एंड आप जो है उस पर सिर्फ डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट जो है वो क्लेम कर पाओगे। नहीं, ये आएगा आपका यहाँ पे वो, क्योंकि अब जो है सो दे आर चेंजिंग इट। पहले जो है ना यही एनोमलीज थी, इसीलिए आप देखो कि यहाँ पे जो है व्हाट हैव दे यूज द वर्ड राइट ऑफ यूज एसेट्स। आई हैव दीज एसेट्स, आई हैव राइट टू यूज देम, राइट। जब हम नीचे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लीज लाइबिलिटीज जो है आपकी यहाँ पे आपको अलग दिखानी पड़ रही हैं। जो नॉन करंट है वो अलग है, और जो करंट है, जो इस साल में मेरी लीज जो मेरी खत्म हो जाएगी या देनी है, वो उसका अलग है। आपने 100 रुपीज का एक एसेट लीज पे लिया, ठीक है, आपको 25 रुपीज लीज में जो है वो हर साल देना है। दिस इज द लीज अमाउंट दैट यू हैव टू पे एवरी ईयर। तो मेरी करंट लीज जो है, करंट लीज लाइबिलिटी जो है वो मेरी 25 हो जाएगी, एंड मेरी जो नॉन करंट लीज लाइबिलिटी है वो 75 हो जाएगी पहले साल में। तो वो हर साल जो है उस हिसाब से मेरा चेंज होता जाएगा। इसमें जब हम करेंगे तो इसमें फिर हम अपना वो इंटरेस्ट का चार्ज आ जाएगा। सो नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मेरा सपोज प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट है ना, तो मेरा अगर वो 100 रुपये है यहाँ पे और 100 रुपये है यहाँ पर, अगर मैं जो भी इस पे इंटरेस्ट दे रहा हूँ, तो अगर मैंने मशीन सपोज बैंक से ली है इंटरेस्ट पे, तो मैं उसका इंटरेस्ट दूंगा नहीं। लीज में जो है व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर पेइंग फॉर द एसेट एंड यू आर आल्सो पेइंग फॉर द इंटरेस्ट, so you have to separate the two parts. But what typically happens is, so basically जो है your depreciation you can calculate, depreciation तो आता है, see the typically if your lease is for 5 years, so depreciation जो है वो आता है आपका। So the point I'm trying to say is कि basically now in accounting they are trying to bring in more clarity. Anything that used to be off balance sheet etc earlier is now being brought into the balance sheet, right? आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को भी जो है ना, they are kind of trying to clear it so that you can clearly see and you can actually compare. पहले जब आप लीज लेते थे तो आपको पता ही नहीं लग पाता था, आप कंपेयर ही नहीं कर पाते थे। किसी ने ईएमआई में ले लिया, ईएमआई पूरा जैसे दे दिया तो वो लोग पूरा का पूरा ईएमआई को खर्चे में दिखा देते थे, पता नहीं लग पाता था। नाउ जो है यू हैव टू देन सेपरेटेड बिटवीन योर इंटरेस्ट, योर दिस थिंग, and then show it in your books of accounts. So the balance sheet is property, plant and equipment, ये आपको पता है। So this is my land, buildings, plant, equipment, machinery, everything comes in here. Depreciation जो भी आ गया। This is capital work in progress. What is who will tell me capital work in progress? Exactly. अगर मैं अपनी कोई बिल्डिंग बना रहा हूँ, ठीक है, और बिल्डिंग बना रहा हूँ, मेरी बिल्डिंग बन रही है, अभी तक वो मेरा एसेट पूरा तैयार नहीं हुआ है, तो उसमें जो भी मेरा इन्वेस्टमेंट है वो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में है। मैं नया प्लांट लगा रहा हूँ, मशीन्स वगैरह खरीद रहा हूँ, मशीन्स मेरी इंस्टॉल नहीं हुई हैं, दैट इज ऑल कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। कैपिटल इसलिए क्योंकि ये मेरा नॉन करंट लॉन्ग टर्म है, क्योंकि मेरा करंट एसेट्स में भी वर्क इन प्रोग्रेस हो सकता है, राइट, उसको हम तब बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। तो अब इसमें भी लोग क्या करते हैं कि मेरी बिल्डिंग आधी बनी, आधी बिल्डिंग को जो है उन्होंने कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ना दिखा के उसको एसेट में दिखा दिया, उसका डेप्रिसिएशन क्लेम करने के लिए। द ऑडिटर एक्चुअली कैचेज इट, या मतलब जो भी उनका जो है कभी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन या कुछ हुआ, दिस विल टेंट अमाउंट टू फ्रॉड। तो आप मशीन खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे हैं, जब आप मशीन खरीद लेते हैं उसका सारा इंस्टॉलेशन कॉस्ट वगैरह आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो ये आपका कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है। राइट ऑफ यूज एसेट्स मैंने आपका बता ही दिया, जो है ये दिस इज लीज एसेट्स, पहले ये बैलेंस शीट में नहीं आता था, अब ये जो है बैलेंस शीट में आना शुरू हो गया है। इंटेंजिबल एसेट्स वी ऑलरेडी डिस्कस्ड कि भाई आपका जो है लाइसेंसेस वगैरह है, आपका आईपीआर है,
कोई ब्रांड वगैरह का कुछ हो तो वो सारा यहाँ पे इंटेंजिबल एसेट्स में आएगा. सो वी वर टॉकिंग अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स में आए इन्वेस्टमेंट्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स. रेड मैं एक बार फिर भी पूछ लूँ, समझ में आ गया? फाइनेंशियल एसेट्स समझ में आ गया. हमने इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट्स किया हुआ है, हमने दूसरी कंपनी के शेयर्स लिए हुए हैं. व्हाट इज डेफर्ड टैक्स एसेट, वही मैं बता रहा हूँ. लेकिन ये नंबर्स तो हमारा इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से डेप्रिसिएशन रेट्स होता है, कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट के हिसाब से इंटरेस्ट वो होता है. जब हम डेप्रिसिएशन के लिए जाते हैं तो हमारे डेप्रिसिएशन रेट इनकम टैक्स एक्ट में अलग तरीके से प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, कंपनीज एक्ट में अलग तरीके से प्रिस्क्राइब किए हुए हैं, क्योंकि वो लाइफ ऑफ एसेट, यूज कंडीशन, 8 घंटे की शिफ्ट है, 24 घंटे प्लांट चल रहा है, कुछ चल रहा है, सबके हिसाब से जो है ना. तो होता क्या है कि जब आप अपनी बैलेंस शीट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हो, आपने डेप्रिसिएशन अगर किया कंपनीज एक्ट के हिसाब से, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से अलग है, तो आपका जो है या तो आप ज्यादा टैक्स आज पे करोगे, राइट, या कम टैक्स पे करोगे. तो वो जो डिफरेंस है वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट या डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी में चला जाता है. मैं आपको टर्म समझा रहा हूं अभी. सी दिस कैन बी आइदर डेफर्ड टैक्स एसेट और दिस कैन बी अ डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी. अगर मैंने आज ज्यादा पे कर दिया टैक्स, ठीक है, और कल को जो है मुझे लग रहा है कि मेरी लायबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो जो है जो डिफरेंस एसेट है वो एसेट में आ जाएगा. लेकिन अगर आज जो है मैंने इनकम टैक्स सपोज मैंने कंपनी सेक्रेटरी उसका कंपनीज एक्ट के हिसाब से मैं चल रहा हूँ, मैंने जो है यहाँ पे कम दिया, लेकिन इनकम टैक्स में मेरी लायबिलिटी ज्यादा होगी, तो फिर वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के हिसाब से आ जाएगा. ठीक है, अगर आगे ज्यादा देना है तो लायबिलिटी के हिसाब से आएगा, वरना. तो ये हो गया. अदर टैक्स एसेट्स, मेरा प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो मैंने प्रीपेड किया, एडवांस टैक्स वगैरह दिया, वो जो है मेरा यहाँ पे आ जाएगा. अदर नॉन करंट एसेट्स, हाँ, आपके प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह भी हो सकते हैं जो आपके जो है 4 या 5 साल में जो है आपको पे करना है, ठीक है, वो सब यहाँ पे आ सकते हैं. मैं मशीन खरीद रहा हूँ, ठीक है, मैंने मशीन के लिए जो है एडवांस दिया, मेरी मशीन जो आएगी वो 2-3 साल में आएगी, तो वो मेरा यहाँ पे अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएगा, क्योंकि अभी मैंने एडवांस दिया है. मैंने आज मशीन के लिए मैं गया, उसने कहा जी मैं 2 साल में आपकी मशीन बना के दूंगा. उसने कहा लेकिन आप मुझे 30% जो है उसका एडवांस दे दो. अब मेरे पास कोई और चारा ही नहीं है, तो मैंने 30% एडवांस दे दिया, ठीक है ना. जब वो मेरी मशीन आ जाएगी, और आ गई लेकिन अभी मेरी मशीन लगी नहीं है ना, कमीशनिंग हुआ नहीं है, तब जो है मैं उसको यहाँ पे कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में ले लूंगा. सो अब मेजर चीज ये भी है, अक्रूवल का भी हम कंसेप्ट करते हैं, लेकिन अगर ये लॉन्ग टर्म है तो सो आई कैन हैव 2-3 काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट. मैंने जो है अपने ऑफिस जो है 3 साल के लिए रेंट पे लिया है, उसके लिए जो मैंने सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया है वो मेरा अदर नॉन करेंट एसेट्स में आ जाएगा. लेकिन मेरा 1 साल का रेंट है, 1 साल का रेंट कॉन्ट्रैक्ट है, मैंने 1 साल में जो है मैंने एडवांस दिया है, तो वो मेरा करंट एसेट्स में आ जाएगा. IFRS अभी आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, वो 500 करोड़ की कंपनी वगैरह जो है ना उनके ऊपर है. जैसे ये कंपनी के ऊपर है, तो इसने अपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है ये IFRS के हिसाब से बनाई है, इसलिए इसने राइट ऑफ लीज एसेट्स वगैरह वैसे बनाया है. नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, लेकिन उसमें IFRS जैसे. सो वी हैव कम टू दैट, वी हैव कम टू करंट एसेट्स. इन्वेंट्रीज हमें पता है, फिनिश गुड, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस. फाइनेंशियल एसेट्स हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक बैलेंसेस, लोन्स, अदर फाइनेंशियल एसेट्स. ठीक है, मार्जिन मनी वगैरह हम देते हैं, कुछ भी देते हैं, यहाँ आ जाएगा. LC वगैरह के लिए आप देते हो, हाँ. अदर करंट एसेट्स आ गया आपका, ठीक है, जैसे आपने एडवांस टैक्स वगैरह पे किया या कुछ किया उस साल के लिए, वो यहाँ आ जाएगा. टोटल करंट एसेट्स, टोटल एसेट्स. अब हम आ जाते हैं लायबिलिटीज पे. तो इक्विटी हो गया हमारा, अदर इक्विटी हो गया. इन्होंने जो है बोनस इशू वगैरह किया और किया, तो वो यहाँ पे अदर इक्विटी आ गया. कई बार जो है प्रेफरेंस कैपिटल भी होता है. प्रेफरेंस कैपिटल इज काइंड ऑफ क्वासी इक्विटी, क्वासी डेट. किसी को इंटरेस्ट है तो मैं बताता हूँ, वरना मैं उसके बारे में ज्यादा बताऊंगा नहीं. तो वो जो है हमारा अदर इक्विटी में आता है. रिजर्व्स एंड सरप्लस जो है, इसने क्या किया है, अदर इक्विटी को क्लब कर दिया. जब आप इसका जो है, व्हाट आर दीज नंबर्स, बाय द वे किसी ने मुझसे ये पूछा नहीं, व्हाट आर दीज नंबर्स. आप गेस कर सकते हो कि इसका जो ये बैलेंस शीट हम देख रहे हैं, ये इसकी एनुअल रिपोर्ट में कौन से पेज पे आया होगा. पेज नंबर 122 पे उसका बैलेंस शीट है, एंड पेज नंबर 123 पे उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू, जो आपकी एनुअल रिपोर्ट है, एनुअल रिपोर्ट में सिर्फ बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही नहीं होता फाइनेंस का,
उसमें पहले डायरेक्टर्स रिपोर्ट होती है और भी उनको जो है ना काफी चीजों पे डिक्लेरेशन देना पड़ता है। जब ये नंबर्स आते हैं इसके बाद फिर जो है आपके जो है 15-20 पेजेस और आएंगे जिनमें ये नंबर्स आपके एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, उनको प्रिंसिपल्स देना पड़ेगा। आपने इन्वेंट्री ली है, लीफो पे ली है, फीफो पे ली है, उसको जो है वहां पे स्टेट करना पड़ेगा कि मेरी अजम्पशंस क्या है या हमने किस तरीके से कैलकुलेट किया है, कौन सा प्रिंसिपल फॉलो किया है। वेटेड एवरेज फॉलो किया है तो वेटेड एवरेज लिखेगा वो। तो ये जो है ये उनका शेड्यूल नंबर है। अगर मुझे अदर इक्विटी की डिटेल्स देखनी है तो मैं 17 नंबर पे जाऊंगा, नोट नंबर 17 या शेड्यूल नंबर 17। सो लाइबिलिटीज आ गई अब हमारी, नॉन करेंट लाइबिलिटीज, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आ गई, बोरोइंग्स आ गई, लीज लाइबिलिटी आ गई जो राइट ऑफ यूज एसेट है, मेरी अदर फाइनेंशियल लाइबिलिटीज आ गई यहाँ पे, फिर मेरी करंट लाइबिलिटीज आ गई। अगेन इसमें भी मेरी बोरोइंग्स है, बैंक बोरोइंग्स है, मेरी वर्किंग कैपिटल लिमिट्स वगैरह हैं वो यहाँ पे आ गया। लीज लाइबिलिटीज आ गई जो मुझे लीज लाइबिलिटीज इस साल पे करनी है। अगर इसकी मैं डिटेल्स दिखाऊंगा तो उसमें जो है आपकी ग्रेच्युटी आएगा। कई जगह आप अर्न लीव देते हो तो अर्न लीव भी आपको हर साल के एंड पे 31 मार्च को किसकी कितनी अर्न लीव्स हैं जो पेएबल हैं वो निकाल के उस साल की सैलरी लेवल के हिसाब से उसकी लाइबिलिटी निकालनी चाहिए और वो आपको इस लाइबिलिटी में यहाँ पे दिखानी चाहिए। करंट लाइबिलिटी में आ जाएगा, लॉन्ग टर्म में जो है काम कर रहा है तो लॉन्ग टर्म में आ जाएगा, ग्रेच्युटी तो डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में आएगा। ये हो गया करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज हो गया, करंट प्रोविजंस हो गया एंड टैक्स लाइबिलिटीज नेट, जो हमारा टैक्स डिटरमिन हो गया अब हमें देना है क्योंकि 30 सितंबर तक टिपिकली हम ये करते हैं। अक्टूबर में हमें टैक्स भी देना होता है तो लोग वो निकाल के पूरा यहाँ डाल देते हैं। जैसे कई बार होता है कि भाई जब उनको मटेरियल मिलेगा कंफर्म करेंगे, हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सीआईएफ बेसिस पे है तो हम उसको क्या करेंगे अनबिल्ड रेवेन्यू में कर लेंगे, तो वो हमारा जो है ना अनबिल्ड रेवेन्यू में आ जाता है। जैसे हम एफडी का इंटरेस्ट जब लेते हैं, सबसे बढ़िया एग्जांपल है एफडी का इंटरेस्ट। जब एफडी का इंटरेस्ट आता है तो उसमें दो तरीके से इंटरेस्ट इनकम आती है, जो हमें एफडी का इंटरेस्ट मिल गया और दूसरा आता है कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। क्योंकि अगर मेरी एफडी है, मेरी एफडी जो है 1 साल की है, ठीक है, 9 महीने यहाँ हो गए, 3 महीने यहाँ बचे हैं, तो वो 9 महीने का इंटरेस्ट मुझे यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, सो आई एम टेलिंग यू दिस प्रिंसिपल बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये यहाँ पे आएगा भी। तो हमारा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आ गया, ये मेरी अदर इनकम आ गई। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट किया, कुछ किया, मेरा सब्सिडियरी से डिविडेंड आया, वो सारा मेरा अदर इनकम में आ जाएगा। मैंने मशीनरी बेची, कुछ किया, वो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंजेस इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये इसने माइनस किया है। ये क्यों माइनस किया है? वो मेरा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आ गया। जो भी मेरा रॉ मटेरियल था, वर्क इन प्रोग्रेस था, मैंने ओपनिंग बैलेंस ले लिया, परचेजेस ले ली और मैंने क्लोजिंग बैलेंस ले लिया। ठीक है, उनका जो डिफरेंस है वो मेरा यहाँ पे आ गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड क्या हुआ? जो मैंने ट्रेडिंग आइटम खरीदा, तो जितना भी मैंने ट्रेडिंग आइटम खरीदा वो मेरा यहाँ पे आ गया। सो क्या होगा कि इसका जो फिनिश गुड्स का जो इन्वेंट्री है, वो फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री बढ़ गई। ओपनिंग बैलेंस अगर मेरा 100 रुपए था तो मेरा जो क्लोजिंग बैलेंस है वो सपोज 450 है। तो क्या हुआ है, ये जो मेरा मटेरियल यहाँ पे कंज्यूम हुआ, ये तो मैंने रॉ मटेरियल और वर्क इन प्रोग्रेस लिया, इसको जो है ये जो मेरा मटेरियल कंज्यूम हुआ इसमें से ये फिनिश गुड में भी गया, जो मेरे 350 एक्स्ट्रा पीसेस बन गए। तो मैं जो है यही 350 पीसेस तो मेरे अगले साल सेल होंगे, तो मुझे इनकी कॉस्ट भी कम करनी चाहिए, इजंट इट? इसलिए जो है उसने उसको माइनस कर दिया। जो भी उसका एडिशन है, इंक्रीज इन माई फिनिश गुड्स, वो उसने माइनस कर दिया। अगर अगले साल उसका जो है सपोज ये 450 है और अगले साल उसकी जो है क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा, तो वो ये 200 रुपए यहाँ पे माइनस करने की जगह ऐड कर देगा, क्योंकि ये जो है मैं पिछले साल से कर रहा हूं। अभी मैंने 2 शब्द बोले थे, मैचिंग कंसेप्ट एंड अक्रूअल। तो मैचिंग यही कंसेप्ट है कि जो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस है वो इस साल की इनकम और इस साल का खर्चा दिखाए। तो जो मैंने एक्स्ट्रा फिनिश गुड बना दिया, या मैंने जो है सपोज स्टॉक इन ट्रेड भी खरीद के जो मेरे पास बच गया, वो जो है मेरा इस साल की सेल नहीं है, अगले साल की है, तो वो मुझे यहाँ से इसलिए कम करना पड़ेगा। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, तो यहाँ पे वो हमारा ग्रेच्युटी वगैरह जो खर्चा हुआ, जो हमने ग्रेच्युटी पे किया, वो सब यहाँ पे आ गया। जो देना है वो हमारा बैलेंस शीट में चला गया। फाइनेंस कॉस्ट, जो भी हमने इंटरेस्ट वगैरह पे किया। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन? सो आइडियली your accounting should be based on nature of expenditure, representation could be based on nature of activity. तो this is good for presenting to people, क्योंकि अब हमें समझ में आ रहा है कि इनका टोटल मार्केटिंग का खर्चा कहाँ है।
कल को अगर आप देखना चाहो कि ये कंपनी मार्केटिंग पे कितना खर्चा कर रही है, व्हाट परसेंटेज, तो आप सीधा मार्केटिंग डिवाइडेड बाय सेल का खर्चा उठा लोगे, आपको एनालाइज करना आसान हो जाएगा। तो हमने क्या कहा, मेरी सेल है, सेल मेरी सेल में आ जाएगी, ठीक है ना। अब सेल की वजह से मेरी लेनदारी खड़ी हो गई है, तो अभी हमने बैलेंस शीट में कहा था व्हाट आई ओ व्हाट आई ओन, वो मेरा बैलेंस शीट में जाएगा। व्हाट आई हैव सोल्ड एंड व्हाट प्रॉफिट एंड व्हाट आई हैव स्पेंट टू सेल, वो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। आपने देखा था मैंने जब वहां पे हमने कहा था अदर टैक्स एसेट्स, तब मैंने बात किया था कि यहाँ पे टैक्सेस भी हो सकता है, वो इसीलिए क्योंकि मैंने तो पे कर दिया किसी चीज पे टैक्स, राइट। अब वो टैक्स जो है मेरा वैसे बाद में बनता है। सो विल एक्सप्लेन बोथ इनवॉइस एंड परफॉर्मा इनवॉइस। देयर इज अ 3-way मैच। सो 3-way मैच इज, डू आई हैव अ लाइबिलिटी टू पे, ठीक है, व्हेन डज माय लाइबिलिटी टू पे अराइज। ओके, सो विल गो वन स्टेप फर्दर। द फर्स्ट थिंग इज कि देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। भाई मेरा और आपका एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना कि आप मुझे कुछ दोगे तो मैं आपको पैसा दूंगा, या मैं आपको कुछ दूंगा तब आप मुझे पैसा दोगे। सो देयर शुड बी अ कॉन्ट्रैक्ट। तो आपका जो भी ये परचेज ऑर्डर वगैरह है, नहीं ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्योंकि आप लोगों ने बोला था इसलिए मैं कर रहा हूं, तो आपका जो परचेज ऑर्डर वगैरह है या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, दीज आर ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आपका होना चाहिए। जैसे सौरभ, यू रिमेंबर मैंने आपको फिर एमएसए का एक वो भी भेजा था टेम्पलेट। तो अगर सर्विस एग्रीमेंट या सर्विस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, ठीक है, तो भी आपको डिफिकल्ट हो जाएगा प्रूव करना कि भाई ये क्या हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस थी, हमने मीट किया कि नहीं किया। द सेकंड थिंग इज कि आई हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज विच वर प्रोमिस्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा क्या होता है, जीआरएन एमआरएन बनता है। आजकल लोग सर्विस रिसीट नोट भी एक लिखने लग गए हैं, तो सर्टिफिकेट या कुछ बना देते हैं। थर्ड थिंग, क्लेम टू पे। व्हेन द क्लेम टू पे हैज कम टू मी, तभी तो मैं पे करूंगा। सो द क्लेम टू पे इज थ्रू इनवॉइस। अगर इनवॉइस ही नहीं है तो मेरा कोई क्लेम ही नहीं है। तो वो यही कह रहा है कि परफॉर्मा इनवॉइस है। परफॉर्मा इनवॉइस तो जो है एक एस्टिमेट है, लेकिन क्या होता है कि क्लाइंट्स को क्योंकि खुद अपना बिलिंग करनी होती है, एंड स्पेशली नाउ व्हेन दे आर यूजिंग थिंग्स लाइक एसएपी एक्सेट्रा, तो सम ऑफ देम से कि ठीक है आप परफॉर्मा इनवॉइस दे दो, हम परफॉर्मा इनवॉइस पे आपको एडवांस या कुछ करके जो है ना पेमेंट दिखा देंगे। आइडियली परफॉर्मा इनवॉइस पे एडवांस करके पे दिखाना चाहिए, और जब इनवॉइस आ जाए तब आपको एडवांस से हटा के उसको अपना जो है पेमेंट में दिखा देना चाहिए। सो दिस इज द मीडिया। सी, कॉन्ट्रैक्ट में एनफोर्स करूं या नहीं करूं वो मेरी मर्जी है, होना तो चाहिए ना मेरे पास। कल को जो है अगर मुझे ले जाना पड़े या जाना पड़ेगा, अगर मैं कोर्ट में चले जाऊं और कोर्ट में वो जाके कहेगी ये तो इसके साथ तो मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, तो व्हाट शुड आई पे हिम फॉर, तो आप क्या जवाब दोगे? सी यू कैन आर्म ट्विस्ट इज दिस थिंग, आर्म ट्विस्ट इज अ सेपरेट इशू, बट वी आर राइट नाउ टॉकिंग ऑफ लीगल फ्रेमवर्क, विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हाउ इट शुड बी। और मैं इसलिए ये आपको बात बता रहा हूं क्योंकि अगर आप भी कभी परफॉर्मा इनवॉइस पे पेमेंट करते हो, यू शुड शो इट एज एन एडवांस टू द वेंडर, राइट? क्योंकि आपका क्लेम टू पे तभी बनता है जब आपकी इनवॉइस आ जाती है। जिस दिन आपकी इनवॉइस आ जाए उस दिन आप उसको जो है पेमेंट में कर दो। तो वही हम जैसे अक्रू में करते हैं या प्रीपेड में करते हैं। सो ये हमारा जो है अदर एक्सपेंसेस आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया, करंट वो आ गया, टैक्स एक्सपेंसेस आ गया, जो पिछले साल का डेफर्ड क्रेडिट अगर हमें कुछ एडजस्ट करना था वो कर दिया, प्रॉफिट फॉर द ईयर आ गया। ये जो है हमारा पिछले साल का कई बार हम रिक्लासीफाई करते हैं, कुछ करते हैं, उसकी वजह से कोई एडिशनल टैक्स लाइबिलिटी वगैरह आती है तो वो यस्टर ईयर एडजस्टमेंट्स वगैरह कुछ होता है उसकी वजह से आ गया। एंड फिर हमारा जो है ये कंप्रिहेंसिव जो है उसने इनकम दे दिया और हमारा ईपीएस निकाल दिया। ईपीएस वगैरह अभी हम आगे बात करेंगे। पैट इज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो अभी हम बाकी सबकी भी बात करेंगे, एनी क्वेश्चंस एक्सेट्रा। सो देन वी विल मूव टू कैश फ्लो, क्योंकि यहाँ तो प्रॉफिट आ गया 18,000 करोड़, तो क्या उसका इतना बढ़ गया 18,000 करोड़ से? कैश तो उसका 3,000 करोड़ पे ही था। अब मैं एक चीज आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछ लेता हूँ, ये प्रॉफिट क्या होता है? हमारा एसेट होता है, लायबिलिटी होता है? कंपनी और हम अलग अलग चीज है। Until and unless it's a proprietary firm, तो proprietary firm में जो है आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो जाती है, तो ओनर्स एसेट्स कैन ऑल्सो बी ड्रॉन इन। कल को अगर जो है कंपनी लॉस में जाती है तो ओनर के अपने एसेट्स कैन बी यूज्ड टू फुलफिल इट, लेकिन हमारी जो कंपनीज होती हैं वो लिमिटेड लाइबिलिटी होती हैं, और अब उन्होंने इसलिए लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और वो सब भी निकाल दिया है। क्यों? क्योंकि जैसे कि जो बिजनेस है मेरी लाइबिलिटी उतनी ही है जितना मैंने बिजनेस में पैसा दिया है, तो जितनी मैंने इक्विटी दी है। आई मे बी ओनर, मतलब आई द इक्विटी, लेकिन जो कंपनी है ये हम कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे हैं, कंपनी का बैलेंस शीट बना रहे हैं, अपना पर्सनल नहीं बना रहे हैं। सो द कंपनी ओज दैट मनी बैक टू अस एज अ शेयर होल्डर। एंड इंटरेस्टिंग चीज है, अगर आप कभी देखोगे तो इफ यू टेक द टोटल एसेट्स ऑफ द कंपनी एंड माइनस द करंट लाइबिलिटीज, राइट,
what you will get is net equity. If you take the total assets, current, non current, जितना भी assets है वो सारा ऐड कर दो, उसमें से current liabilities माइनस कर दो, जो बचेगा वो आपका जो है इक्विटी बचेगा. So now we come to cash flow. क्योंकि अभी तक जो है हमने देखा प्रॉफिट से तो हमें पता लग गया कि प्रॉफिट में हमने ये देख लिया कि कितना मुनाफा कमा लिया, लेकिन जैसे सौरभ ने कहा कि मैंने तो उसको बेच दी अपनी इनवॉइस, मेरी इनकम भी आ गई, ठीक है, देनदारी भी आ गई, पैसा तो आया ही नहीं. तो हमारे बिजनेस में हमने पूरे साल कितना पैसा आया, कहां से आया और कितना पैसा लगा, कहां पे लगा, ये कैसे पता लगेगा? ये हमें उसके लिए कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना पड़ेगा. तो अगर आप अपने हर एक एसेट और लायबिलिटी हेड का जो है ना, वो एसेट हेड का इस साल का और पिछले साल का जो है आप डिफरेंस करते जाओ, तो वहां से आपका जो है ना मोटा मोटी जो है कैश फ्लो आपको पता लग जाएगा. If you don't want to invest too much this thing and just want to broadly understand it, तो back of the paper calculation वो है. Trial balance is an intermediate process, क्योंकि आपकी सारी transactions हैं, तो आप उसको वो जो है ना in a way trial balance captures all these things. And then फिर उससे आप उससे बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अलग अलग कर देते हो. सो दिस इज द थिंग जो आपको हर महीने तो एटलीस्ट बनाना ही चाहिए. दैट इज व्हाट आई काइंड ऑफ सजेस्ट. सो इसमें उन्होंने क्या किया है, हम इसको जो है ना कैश फ्लोज को यहाँ पे उन्होंने अलग अलग सेक्शंस में बांट दिया है कि मेरा ऑपरेशन से कितना पैसा आया, फिर मैंने उसको जो है अगर कोई एसेट बेचा, कुछ बेचा, इन्वेस्टमेंट्स बेचा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से मेरा कितना पैसा आया या कितना पैसा लगा. तो सबसे पहले उसने निकाला कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. तो उसने क्या कर लिया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया. उसके बाद उसने डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन ऐड कर दिया. ये क्यों ऐड किया? ये उसने क्या किया कि अपना पूरा साल दिया फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 टू 31 मार्च 2025. अब पूरे साल का वो कैश फ्लो बना रहा है. उसने प्रॉफिट बिफोर टैक्स ले लिया. अब उसने जो है डेप्रिसिएशन उसमें ऐड कर दिया, अमोर्टाइजेशन एंड डेप्रिसिएशन. वो क्यों? पीएनएल से निकला है. लेकिन क्यों ऐड किया? क्योंकि ये हमारा जो है ये नॉन कैश एक्सपेंडिचर है. तो जितने भी नॉन कैश एक्सपेंडिचर्स हैं वो हम सारे ऐड कर देते हैं. फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट इनकम, ये हमारा ऑपरेशंस का मतलब नहीं है. तो वो पहले ये कह रहे हैं कि मेरे धंधे से मुझे कितना पैसा आया. जो भी मेरे नॉन ऑपरेशनल एक्सपेंसेस या इनकम थे वो मैंने इसको हटा के नेट देखा. तो मेरा जो है 30,000 जो है ना, इनका 307 करोड़ रुपया जो है वो इनका धंधे से पैसा आया. तो फिर आया आपका कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस. तो अब क्या किया, ये तो मेरा धंधे से आ गया. अब मैंने वर्किंग कैपिटल में कितना इस साल पैसा लगाया या विड्रॉ किया. क्यों? मेरी पिछले साल अगर मेरी देनदारी जो है ज्यादा थी, इस साल कम हो गई, इसका क्या मतलब हुआ? देनदारी खत्म की ना. तो इसका मतलब क्या था? पिछले साल मेरे वेंडर्स ने मेरे बिजनेस में उतना पैसा लगाया हुआ था, इस साल वो कम हो गया. कम कैसे हुआ? क्योंकि मैंने अपना पैसा लगाया. तो मेरा कैश आउटफ्लो हो गया ना, इजंट इट? अगर मेरा रिसीवेबल बैलेंस बढ़ गया, पिछले साल मुझे 100 रुपए अपने कस्टमर से लेना था, इस साल मुझे 125 रुपए लेना है, तो क्या हुआ? तो मैंने अपनी जेब से वो पैसा लगा दिया ना धंधे में अपने 25 रुपए. तो ये जो है यहाँ पे हम वर्किंग कैपिटल में जो कैश फ्लो है वो देख रहे हैं कि इस साल मेरा वर्किंग कैपिटल में क्या हुआ. तो उसने कहा इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज, क्योंकि अगर मैंने रॉ मटेरियल या फिनिश गुड की जो है मटेरियल मेरे पास पड़ा हुआ है, एडिशनल आ गया, बिका नहीं, तो मेरा पैसा वहां पे लग गया. इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स, इंक्रीज इन अदर करंट एसेट्स. इसीलिए मैंने बोला ना कि अगर आप बैलेंस शीट को ले लो और बैलेंस शीट से इस साल का और पिछले साल को माइनस कर दो, यू विल गेट अ रफली कैश फ्लो. जब मुझे क्विक एंड डर्टी निकालना होता है ना किसी कंपनी का कैश फ्लो, मैं यही काम करता हूं. मैं बस दोनों के उसकी बैलेंस शीट उठाता हूं, वहां से देख लेता हूं कि भाई इसने क्या क्या किया, तो मुझे समझ में आ जाता है मोटा मोटी कि क्या हुआ. ज्यादा डिटेल करना हो तो फिर ये आके देख लो. इंक्रीज इन अदर नॉन करंट एसेट्स, मेरी करंट लायबिलिटीज, प्रोविजंस, ये सारा जो है ना ये उसी कंसेप्ट से आके मेरा आ गया कैश फ्लो और डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल. तो ये क्या हुआ है? इसका मतलब है कि मैंने जो 30,000 था उसमें से मैंने 9,000 करोड़, ये 917 करोड़ जो है मैंने अपने बिजनेस में लगा दिया. अब मैंने अपना इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज ली. तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में मैंने देख लिया कि भाई मैंने प्रॉपर्टी खरीदी, ठीक है, लीज होल्ड लैंड के लिए कुछ पैसा दिया, मेरा जो है इक्विपमेंट या मैंने अपना प्लांट वगैरह कुछ बेचा, पुराना मशीन वगैरह, शेयर्स के लिए एप्लीकेशन मनी दिया. जब मैं शेयर दूसरी कंपनी के खरीद रहा हूँ उसमें इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरीज, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट्स, लोन्स दिए मैंने एम्प्लॉयज या रिलेटेड पार्टीज को, ये सारा मिला के तो मेरा नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आ गया. तो इसका मतलब ये क्या है कि इस साल इस कंपनी ने अपना इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया है, और कहाँ कहाँ किया है वो हमें यहाँ पे पता लग गया. मेजर इन्वेस्टमेंट इनका कहाँ गया है? इनका जो है प्लांट प्रॉपर्टी वगैरह में खरीदने में. अब ये नया प्लांट डाल रहे होंगे
ठीक है, उसमें जो है इनका पैसा लग गया, वहां पे दिखता है। तो ये हमारा बैंक एंड बैंक बैलेंसेस में दिखता है। तो मेरा पिछले साल अगर बैंक बैलेंस 100 रुपया था और इस साल मैंने 2 रुपया एक्स्ट्रा खर्च कर दिया, तो इस साल मेरा बैंक बैलेंस 98 रुपीज हो जाएगा। दिस इज ऑल्सो द टेस्ट। अगर आपको कभी भी टेस्ट करना है, आपका सीए जो है अब इस तरह का स्टेटमेंट आपको बना के दे दे, तो आप तो घूम जाओगे और आपको समझ में नहीं आएगा कि ये सही है गलत। तो अगर आपको सही या गलत पकड़ना है तो उसका क्या सॉल्यूशन है, आप अपना बैंक बैलेंस चेक करो फॉर द ओपनिंग पीरियड एंड द क्लोजिंग पीरियड। क्योंकि जो भी वो यहां दिखा रहा है, अगर वो कह रहा है 2 रुपए एक्स्ट्रा आया, तो मेरे बैंक में जो है पहले 100 रुपए थे तो 102 रुपए हो जाने चाहिए। अगर वो कह रहा है कि नहीं इस साल आपका कैश फ्लो ज्यादा हो गया, 5 रुपए आपका ज्यादा निकल गया, तो अगर 100 रुपए था तो 95 रुपए हो जाना चाहिए। चाहे मैं महीने का बनाऊं, चाहे एक दिन का बनाऊं, चाहे मैं जो है उसको क्वार्टर का बनाऊं, चाहे पूरे साल का बनाऊं। यू शुड ऑलवेज चेक योर बैंक एंड बैंक बैलेंस। मेरा पिछले साल कैश एंड वो कितना था बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड मेरा एंड ऑफ द ईयर, और दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो यही आएगा। कैश इक्विवेलेंट्स जो है एनीथिंग विच आई कैन कन्वर्ट। अगर मैंने गिल्ट वगैरह में जैसे इन्वेस्ट किया है या कुछ भी किया हुआ है, या मैंने लिक्विड डेट फंड में मैंने डाला हुआ है। सी द थिंग इज, द आइडिया इज कि वो मेरा 2 या 3 दिन में पैसा आ जाता है। अगर आज मैं लिक्विड फंड में या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में डालता हूं तो वो दूसरे दिन ही मेरा पैसा आ जाता है, इसलिए उसको हम कैश इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इसने अपनी बैलेंस शीट बनाई है, इसने बैलेंस शीट में बैंक को अलग नहीं दिखाया, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक साथ कर दिया। बट मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मैं आपको कह रहा हूं बैंक। आप अपना बैंक बैलेंस देखो कि मेरा उस पीरियड से पहले, अगर मैंने 15 दिन का कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया है, तो मेरा 15 दिन पहले मेरा बैंक में कितना पैसा था, 15 दिन के बाद कितना पैसा है, उसका डिफरेंस कितना है। जो भी मेरा डिफरेंस है वो मेरे कैश फ्लो के स्टेटमेंट में जो मेरा पैसा आया उससे मैच करना चाहिए। सो नाउ विल कम टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो आज का एक्चुअली जो सार है वो है फाइनेंशियल रेशियोज। तो हमें रेशियोज क्यों चाहिए होते हैं? अपनी कंपनी का अगर हमें देखना हो, कुछ रेशियोज होंगे जो सिर्फ बैलेंस शीट के नंबर्स देखेंगे, कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के देखेंगे। जैसे मैंने कहा कि भाई माय कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम टू माय सेल्स, दिस इज अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का होगा। कुछ होगा जो मिलके भी होगा, जैसे अनुराग कह रहे थे कि एबिटा ऑन एसेट्स, ठीक है, तो उसमें बैलेंस शीट से भी आया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से भी आया। सबसे बड़ी चीज ये है, रेशियोज जो है इसीलिए नहीं है कि हम अपनी कंपनी को कैसे देख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रेशियोज ये बताते हैं दूसरे लोग भी जो है जब वो देखते हैं वो हमारी कंपनी को कैसे देखेंगे। जब आप लोन लेने जाते हो बैंक से, तो बैंक क्या करेगा? सबसे पहले वो आपके रेशियोज निकालेगा, और आपके रेशियोज निकाल के फिर वो देखेगा कि वेयर आर यू विस अदर्स। तो ये अभी हमने देखा था लॉन्ग टर्म भी है, शॉर्ट टर्म भी है। तो हम लॉन्ग टर्म वायबिलिटी भी देखते हैं कंपनी की, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी भी देखते हैं, क्योंकि कई बार ऐसे हो सकता है कि कंपनी शॉर्ट टर्म में वायबल नहीं हो, लॉन्ग टर्म में वायबल हो। लॉन्ग टर्म में एक देखते हैं डेट टू इक्विटी। डेट टू इक्विटी इज कि हमारा टोटल डेट कितना है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, जो हमने बैंक से लिया हुआ है, अपने वेंडर से लिया हुआ है, करंट लायबिलिटीज वगैरह, वो सारा जो है इसमें ऐड हो जाता है। नॉन करंट लायबिलिटीज, नॉन करंट लायबिलिटीज, और उसको हम टोटल इक्विटी से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन दिस इक्विटी इज नॉट ओनली द शेयर कैपिटल, क्योंकि जो रिजर्व है वो भी तो आप ही की इक्विटी है, आप ही ने तो अपने धंधे में उसको वापस डाला है पैसा, तो वो भी तो आप ही का पैसा है। देयर आर ऑल्सो प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग कंपनीज। अगर आपको ये वो लगाने जा रहे हो, रिफाइनरी लगाने जा रहे हो, आप जो है ये निकालने जा रहे हो, तेल का कुआं जो है डेवलप करने जा रहे हो, उसमें क्या है कि उनको पता है कि भाई ये तो इतना निकलेगा ही निकलेगा और ये बिकेगा ही बिकेगा, उसमें वो आपको 90% तक का भी डेट दे देंगे। बट दिस इज अनयूजुअली गुड, दिस इज अ वेरी गुड डेट टू इक्विटी रेशियो इन द लॉन्ग रन। ये ज्यादातर बिजनेस अपना इक्विटी से कर रहे हैं। नाउ बोथ हैव देयर ओन प्रॉफिट्स, वो मतलब एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिया हो, हमने जो है मार्केट से पैसा उठाया हो, अनसिक्योर्ड लोन उठाया हो, वो भी मेरा लोन है। जो भी मेरा बैलेंस शीट में करंट नॉन करंट लायबिलिटीज में दिखाई दे रहा है वो सारा मेरा है। मैंने वेंडर का पैसा देना है, वो भी मेरा लोन है। मैंने जो है मेरे जो वेंडर का पेमेंट है वो भी मेरी देनदारी है, ठीक है ना। मेरी टोटल लायबिलिटीज कितनी है? मेरी नॉन करंट लायबिलिटीज जो है वो 130 करोड़ के करीब है। मेरा जो है करंट लायबिलिटीज जो है वो 217 करोड़ के करीब है। टोटल जो है मेरा 347 करोड़ का मेरा लायबिलिटी है। नहीं सर, इसमें इक्विटी दिखाओ ना मेरे को। अभी इक्विटी भी दिखा रहा हूँ। इक्विटी जो है हमारी ये है 96,441, 60 करोड़ का वो है, प्लस जो है इनका 900 करोड़ का वो है रिजर्व एंड सरप्लस। 6,000 रुपए की इनका शेयर कैपिटल है और 90,000 रुपए का इनका अदर इक्विटी है। इसके अंदर कोई डेटर्स नहीं है, इसके अंदर कोई स्टॉक नहीं है। नहीं। डेट में क्रेडिटर्स की जोड़े, डेट में आप क्रेडिटर्स कैसे जोड़ देंगे? फिर नहीं जोड़ पाएंगे ना उसमें तो आप। डेट में क्रेडिटर्स, क्योंकि ये मैं ये देख रहा हूँ कि मेरी देनदारी कितनी है। अगर कल को मेरा धंधा बंद हो जाए,
मैं वो डेट को सर्विस कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो क्रेडिटर्स वहाँ जुड़ेंगे, डेटर्स इधर नहीं जुड़ेंगे। हाँ, डेटर्स जो है उनसे दिस इज, सर ये तो कभी भी ठीक नहीं आ सकता। एक सेकेंड, रेशो क्या है, पहले हम रेशो की बात करते हैं। दिस रेशो इज डेट टू इक्विटी रेशो। कि अगर आज मेरे को मैं धंधा बंद कर दूं तो मैं दे सकता हूं पैसा कि नहीं दे सकता। हाँ, या मैं अपना लॉन्ग टर्म में वो देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में जिसका डेट ज्यादा होता है, मैं आज धंधा बंद कर दूं तो पैसा देता हूं। ये रेशो नहीं है, ये तो खाली आपको बता रहा है कि भाई तेरे का तूने 100 रुपए तेरे पास पड़े हैं और तूने 150 देने हैं। रेशो ये है 1.5:1। इरिस्पेक्टिव मेरे पास पैसा आए या ना आए। हाँ, ये हुआ कि आपका बिजनेस बंद हो गया, डेटर्स तो आपके आए नहीं, काम खत्म हो गया, हाँ। इन्वेंटरी आपकी बिकी नहीं, पर लेकिन आपको नहीं, एक सेकेंड, व्हाट दे हैव, एक सेकेंड मैं आपको ये बताता हूँ। सो व्हाट यू नीड इज अ बैकग्राउंड ऑन हाउ डू वी वर्क आउट दीज रेशियोज, ठीक है, क्योंकि हम काफी रेशियोज करेंगे, हम कभी एक रेशियो पे नहीं चलते हैं। दिस इज नॉट द ओनली रेशियो दे यूज। इसके बाद क्या आता है, इसके बाद मेरा आता है डेप्रिसिएशन एज खर्चा माइनस, ठीक है। फिर आ गया, क्या आ गया मेरा, यहाँ पे आ गया इबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो इबिटा, अब इसमें से मेरा क्या चला जाएगा, इंटरेस्ट। तो अब मेरे पास क्या आ गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, यहां से मेरा चला गया टैक्स, अब आ गया मेरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सो इबिटा डेप्रिसिएशन चला गया, इबिटा इंटरेस्ट चला गया, प्रॉफिट बिफोर टैक्स हो गया, टैक्स चला गया, तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ गया। सो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो शुड बी मोर देन 4, ठीक है, इनका 23.75 है। मतलब ये तो क्या बहुत ही एक अच्छी कंपनी है। हाँ, ठीक है, दे कैन बी अदर रेशियोज, समटाइम्स जो है बैंक्स और भी चीजें देखेंगे, वो ये भी देखते हैं, डेट टू एसेट्स देखते हैं, शेयर होल्डर इक्विटी टू एसेट्स वगैरह भी देखते हैं, क्योंकि आइडियली अ गुड प्रैक्टिस इज कि 25% ऑफ योर करंट एसेट्स शुड बी फंडेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट। लाइक आई सेड, कई बार होता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, कई बार जो है ना लोग क्या करते हैं, टिपिकली लॉन्ग टर्म डेट इज चीपर, शॉर्ट टर्म डेट इज एक्सपेंसिव। सेकेंड थिंग इज, मैंने मशीन के लिए तो पैसा ले लिया, अब मशीन का तो जो मेरा पैसा आएगा वो 1 साल 1.5 साल हो सकता है, 2 साल के बाद आए, लेकिन जो शॉर्ट टर्म डेट है वो तो मुझे अभी पे करना पड़ेगा, तो मेरी क्या हो जाएगी, वो देनदारी खड़ी हो जाएगी। इधर से एसेट से तो रिटर्न आया नहीं, तो मेरा बिजनेस से ही पैसा आना चाहिए ना। क्या मेरा बिजनेस उतना पैसा जनरेट कर पाएगा कि मैं कर दूं? बट अ गुड बिजनेस प्रैक्टिस इज लॉन्ग टर्म एसेट्स फाइनेंस फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स फाइनेंस फ्रॉम शॉर्ट टर्म डेट। तो वर्किंग कैपिटल का जितना भी आपका है वो आपकी बैंक की लिमिट्स वगैरह से आए, सर्टिफिकेट्स ऑफ सीपीज होता है उससे आए, ठीक है, या आप जो है मतलब जो भी वेंडर फाइनेंस वगैरह वहां से आए। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम आते हैं, अगेन दीज आर पार्ट ऑफ माय सॉल्वेंसी रेशियोज, शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी देखने के लिए ऑल्सो जो है हाउ आर वी मैनेजिंग आवर वर्किंग कैपिटल। तो करंट एसेट्स टू करंट लाइबिलिटीज, लॉन्ग टर्म एसेट्स शुड बी फंडेड फ्रॉम लॉन्ग टर्म डेट, शॉर्ट टर्म एसेट्स शुड बी फंडेड फ्रॉम शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज, ठीक है। ये मेरे शॉर्ट टर्म एसेट्स हैं, करंट एसेट्स, ये मेरी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हैं। तो मेरे शॉर्ट टर्म एसेट्स शुड ऑलवेज बी more than my short term liabilities. So for me the takeaway is, I'll be honest, कि नंबर्स बहुत सारे हैं, आपको आइडेंटिफाई करना है कि आपके लिए कौन सा रेलेवेंट नंबर है और उसको फॉलो करना है। सो यू डोंट गेट कंफ्यूज बाय कि 50 रेशियो है तो उनको 50 में 50 देखने हैं। यू नीड टू आइडेंटिफाई कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और उसको आप ट्रैक करिए। सो दैट इज़ माई की टेक अवे। नंबर्स बहुत सारे हैं और उनको निकालने का तरीका भी इतना ईजी है नहीं, तो यू नीड एन एक्सपर्ट टू, यू जस्ट डोंट एज्यूम एनीथिंग कि हाँ मेरा तो कैश बढ़िया चल रहा है। यू डोंट डू दैट, यू नीड एन एक्सपर्ट टू आइडेंटिफाई दोज नंबर्स और आपके लिए जो इंपॉर्टेंट आपको बताइए और उनको ट्रैक करिए। तो दैट इज़ माई की टेक अवे। एंड आई थिंक सिमिलर टू मी एज वेल। सो यहाँ पे जो P&L और इन सब की जो बात करी गई है, तो आई थिंक जो मैं अभी नहीं करता हूँ वो है फाइनेंशियल मंथली रिव्यू। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा मंथली बैठ के मंथ ऑन मंथ क्लोज करूँगा। Where is my company heading towards? Based upon that, what is going to be my future? You know, am I going to look for an equity partner, or I'm not going to? I'm going to keep it family owned. ये कैसे क्या करना है? How to go up to the next level? But based upon what has been happening in the
last 5 years. For me, takeaway is कि identify 5-7 critical ratio or critical factors and track it. So far we were not tracking it. हम बस उस समय profitability क्या आ रही है, कितना cash flow है, और whether we are able to meet expenses or not. अभी तक हम उसी पर focus कर रहे हैं. We are not focusing on whether we are actually business is growing or not. The business valuation is growing or not. So we should start tracking it. Some of the takeaways for me is like एक तो मुझे ना strategic long term plan, business plan, and then I know this year we did the AOP plan. तो पहले तो मुझे वो बनाना है जो आज हम बात कर रहे थे. तो I think that is something which is very important for us to seek where we are heading. तो पहले तो वो clarity होना ज़रूरी है, end goal वाला part. Second है जो सर ने बोला कि जो भी last मेरे 4 साल हुए हैं कंपनी के, I have to kind of figure out these ratios because we have not yet calculated it. So we should see where we are heading. Another aspect on the health of how we executed the company or not. And उसके बाद एक जो important part था about capitalization that we were talking about because we are building products and we have been doing all that for last 4 years. So उसको कैसे capitalize करना चाहिए, I think वो शायद maybe is one of the takeaways which we should also think about कि वो CA से बात करके how it should help us for that long term strategic goal is what is the third takeaway which I see. My one takeaway is that always whenever somebody asks for figures, maybe even Anurag sir, we open the sheet, we go to 3-4 tabs and then we get lost. तो फिर हम कहते हैं कि जो CA ने बोला ठीक ही होगा. तो अब maybe we can ask more questions, relevant questions, get more insights on that and work on the profitability part and the operating plan and all. So that is my takeaway. Yeah. Thank you. My takeaway is that I'll be able to understand the balance sheet better, and just like others from our side has said, that probably calculate the ratios and also use a few ratios we aren't using. We're using some but not all. So maybe add a few more and then see where we are. आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को ना, शायद जो कि मतलब हमारे दिमाग में था भी नहीं कि कुछ ऐसा होता है. तो बेसिकली जितना भी हम लोगों ने काम किया है एज ए कंपनी चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अब पता लगेगा हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. अब तक तो अच्छा ही है, सब कुछ लग ही रहा है, अच्छा है, चल रहा है. तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है. इन चीज़ों से आज बहुत कुछ सीखने को मिला है हम लोगों को. माई टेक अवे इज़ दिस कि हमारा रेशियोज तो हम लोग वैसे चेक करते हैं क्योंकि फाइनेंशियल पार्ट मैं ही देखता हूँ दोनों की फर्म का. तो आई नो मेरे को कुछ बहुत चीज़ें पता थी. तो जैसे गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी ला रही है तो हमें और बैलेंस शीट को और अपनी क्लीन करना पड़ेगा और उन चीज़ों जैसे ब्रदर बोल के गए कि एंट्रीज़ को हमें देखना पड़ेगा. तो ये है कि जितनी जल्दी से जल्दी हम अपनी बैलेंस शीट ठीक कर लेंगे तो हमारी बिजनेस की हेल्थ उतनी अच्छी हो जाएगी. मेरा टेक अवे है जी.